نیکسٹ آیا 122 آیا نمبر. وما كان المؤمنون لینفروا نفر ینفروا نکلنا، کوچ کرنا، گھر سے نکلنا، کافہ کافہ. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا. کیا ورڈ ہے یہ لام کو نکال دیجئے، یا کو بھی نکال دیجئے. لام لام تعلیل ہے، یا تو مضارع کا صیغہ ہے. ہاں اس کے بعد یہ ہو بھی نکال، وہ بھی نکال دیجئے، تو کیا بچا؟ سمجھ سمجھ کو کیا بولتی؟ سمجھ کو کیا بولتی ہیں؟ فتوا دینے والے کون بھائی؟ کیا پڑھی انہوں؟ کیا پڑھی؟ فتوا دینے والے کیا پڑھتی؟ جورسپروڈنس. انگلش میں جورسپروڈنس، اردو میں فقہ. علم فقہ، علم فقہ. فقہی مسائل کر کو بولتی نہیں، کیا فقہی مسائل ہے؟ یہی فقہی مسائل جورسپروڈنس کے. جورسپروڈنس بولے تو سمجھنا، گہری سمجھ، یعنی کوئی چیز کی سمجھ حاصل کرنا، بس کوئی زیادہ مطلب نہیں ہے اس کا. فقہ بولے تو سمجھنا. یہ جو علم بیسڈ آن فقہ ہے، اب اس کے اوپر جو فتوے دیتی ہیں، یہ ڈیپ گہرائی میں جا کو کیا موضوع ہے، کیسا سچویشن ہے، یہ سب دیکھ کر کرتے نہیں. مفتی کیسا فتوا دیتے ہیں؟ سچویشن دیکھ کر اور قرآن اور احادیث کی روشنی پہلے لیتی ہیں. اب وہاں نہیں ملا تو کیا کرنا، سوچنا پڑتا ہے. مفتی کا کام بہت زیادہ گہرا کام ہے. سچویشن لینا پڑتا ہے. میاں بیوی کے درمیان ہو گیا تو کیا ہے، چھان بین کرنا اس کی، کس کی غلطی ہے، کیا سچویشن تھا، کیسا ماحول تھا جب انہیں طلاق بولیا، تو یہ کیا ہے، کتنی بار بولیا، کیسا. یہ ساری چیزیں یہ جو ہیں فقہی معاملہ ہے یہ. ہاں اسے بولتے ہیں یہاں فقہ، مطلب یہاں فقہ ہے. منہم طائفۃ لیتفقہوا تاکہ سمجھ بوجھ ہو جائے، فی الدین دین میں، ولینذروا اور تاکہ وہ ڈریں. نظر ینذروا، منذر نام بھی رکھتے نہیں، منذر ڈرنے والا، اسم الفاعل ہے. ولینذروا تاکہ وہ ڈرے، قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. یحذرون بھی ڈرنے والے. کہا جا رہا ہے کہ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان میں سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے. اب اللہ بول رہا ہے غزوہ تبوک کو جانا تھا، تب وہ نفیر عام تھی، جانا تھا، ضروری تھا، تم پیچھے بیٹھے رہے. اب کیا ہو گیا، اب اس وقت جو ایسا ہو گیا اس کی، اس میں تھوڑے لوگ کیا سمجھ گئے، جانا تھا ہمیں نہیں گئے، سو اسے بہت بڑی اللہ کا یہ ہو گیا، اللہ سے مذمت ہو گئی، تو اب سب نکل کھڑنے کے لیے تیار ہو گئی نا. اب ویسا نہیں ہونا چاہیے، اب ضروری نہیں ہے. اب سچویشن، یہ آخری لڑائی تھی نا، غزوہ تبوک کیا تھا، آخری تھی یہ. اب اس کے بعد وہی فتح مکہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، لیکن یہ جو تھا یہ آخری تھا جس میں لشکر اتنا لے کر، اتنی مشکلات کا یہ لے کر جو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 30,000 کا لشکر کبھی نہیں گیا. یہ آخری تھا، یہ غزوہ آخری تھا. تو اب ضروری نہیں ہے، اب اسلام کا ڈنکا بج گیا، سارے حجاز میں اشاعت ہو گئی، اور سارے حجاز اطراف کے لوگ بھی آ جانے. اطراف کا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ قیصر روم تک بھی چلا گیا نا. اب اس کے بعد قیصر روم تک بھی چلا گیا. فتح کب ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشن گوئی کر گئے اپنی حیات طیبہ میں کہ ہو جائے گا، یہ ایران بھی آ جائے گا، فارس بھی آ جائے گا، شام بھی آ جائے گا، یہ سارے آ جائیں گے اسلام کی پرویوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی، بعد میں ہوا. حضرت عمر خطاب کے زمانے میں ہوا، پھر عثمان غنی کے زمانے میں بھی ہوا، لیکن سب کچھ آ گیا، کچھ باقی نہیں رہا تھا. کہا جا رہا ہے کہ اور یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ اہل ایمان میں سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے. مگر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے. سارے کے سارے جہاد میں جانے کے بجائے تھوڑے جو علمیت رکھتے تھے، فقہ جانتے تھے، جو علم دین جانتے تھے، انہوں ایک ٹیم بنا کر آتے، دین کی سمجھ پیدا کرتے لوگوں میں. کس کے متعلق کہا جا رہا ہے یہ؟ بدو لوگوں کے متعلق. مدینے والے اہل مدینہ تو جانتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قریب ہے، قربت ہے، یہاں آ کر سیکھ سکتے ہیں. مسجد نبوی ہے، وہاں قباء بھی ہے، لیکن مسجد نبوی سینٹر تھا، یہ مرکز تھا، یہاں کر سیکھ سکتے تھے. لیکن یہ جو اطراف کے قبائل ہے نا، گرد و نواح کے بدوی لوگ جہاں رہتے ہیں، اب ان میں سمجھ بوجھ نہیں تھی، انہوں بہت ہی شرک پر تھے بدوی لوگ.
वही बुद्धू अंते बुद्धवान नहीं ना बुद्धू रहते। बुद्धू कर को नहीं वो, अरे अरे अरे, हम्म नहीं 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 नहीं, बदू हमारा बदू बुद्धू नहीं, बदू फुल हमारा बदू बुद्धू नहीं, इडियट नहीं, बुद्धू हाँ नहीं। बदवी बोले तो ये बदू जो हाँ हाँ कबाइल रहते ना, अतराफ के अच्छा अच्छा कबाइल, उनको बोलते हैं देहाती लोग उनका नाम देहाती लोग देहाती। देहाती हाँ, लोग देहाती इट लोग इज अ वर्ड, देहाती, हम्म कबायली, देहाती ट्राइबल्स, हाँ यू कैन से कबायली हाँ ट्राइबल्स, बदवी हाँ लोग है, ओके बुद्धू नहीं उन्होंने, अरे बड़े ओके चालाक ओके है, बुद्धू नहीं। हम्म पदवी लोग, बुद्धू ये लोग जो दूर थे, उनको इसकी नॉलेज नहीं थी, इस्लाम की नॉलेज ज्यादा नहीं थी। मालूम था कि तौहीद परस्ती है इस्लाम में, ये सब कुछ मालूम था, लेकिन उनके ये जो ये मुशरिकाना रविश है, ये छोड़ने में उनको बड़ी दिक्कत होती थी। ये कैसा छोड़ डालना, हमारे आबा व अजदाद का ना, ये 2000 साल से फॉलो कर ले कारी ना, कैसा छोड़ डालना, उन्हें सब गलत है क्या, ये ऐसी सारी चीजें थी जो उनके दिमाग पर सवार हो चुकी थी। अब इनको निकालना मुश्किल था, तो इन लोगों के वास्ते कहा जा रहा है कि सारे के सारे बुद्धू मदीना आकर यहाँ रह कर, साल साल रह कर नई तालीम हासिल कर सकते नहीं क्या, ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो दूसरी बात क्या बोल रहा है अल्लाह, ऐसा ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सारे के सारे, अब जो तुम्हारे में उकसाहट आ गई है, ये जो तबूक का तुम्हें सुने, तबूक का ये जो माले गनीमत मिला, तबूक में ये जो भी हुआ गजवा तबूक में, उससे तुम्हें लोग बहुत इंप्रेस हो गए, अब तुम्हें आना चाहते, अब सारे गजवात में आना चाहते। अब ऐसा ना करो, ऐसा जरूरी अब नहीं है। अब ये जरूरी है कि सारे के सारे जिहाद में ना निकले, बल्कि जहाँ जरूरत है वहाँ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिम भेजती, वहां जाओ जिहाद में, एक दस्ता जाता है, दो दस्ते जाती, लेकिन सारे के सारे नहीं जाना, थोड़े आदमी क्या करना, एक टीम बना कर रहे, जो लिखना पढ़ना सीख सकती उन्हों आ जाना, कहा आना, मदीने को आ जाना, नबवी में, मस्जिद नबवी में क़ियाम करना, 1 साल क़ियाम करें, यहाँ के लोग उन्हें पढ़ाएंगे, यहाँ के इल्म दीन रखने वाले उन्हें पढ़ाएंगे, इन्हों पढ़ाई हासिल कर लेना, एक रेसिडेंशियल स्कूल जैसा है, एक रेसिडेंशियल स्कूल है मस्जिद नबवी में। अल्लाह कह रहा है कि ऐसा करो, ऐसा करो कि एक टीम वहां से, बद्दुओं में से एक टीम यहाँ आ जाए, खूब खूब सीखे, 1 साल रहे, खाए पिए यहीं रहे, यहीं से तालीम हासिल करे। अब क्या करना, वो जाना अपने लोगों में इशाअत करना, ऐलान इशाअत करना, अच्छा वहां जो भी रह गई उनमें इशाअत करना। तालीम ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा करो, बोलको अल्लाह कह रहा है कि इनके आबादी के हर हिस्से से, हर हिस्से से, अतराफ आबादी में बहुत हिस्से हैं ना, हर हिस्से से एक 10-15 आदमी, कुछ लोग निकल कर आते आना, और दीन की समझ पैदा करना, और वापस वहां जाकर अपने इलाके के बाशिंदों को इससे आगाही देना, ये इल्म, ये तालीम उनको देना जाकर, ताकि वो ये जो गैर मुसलमानी रविश इख्तियार कर रहे हैं ना, उससे परहेज करें। हम ये पूरा इसका बेआईन इतलाक हमारे ऊपर होता है, हमारे ऊपर, हमारे पास क्या हो गया है, अब ये जो गैर इस्लामी तौर तरीके हैं, ये बहुत आ गई, शादी ब्याह में भी आ गई, तकारीब में भी आ गई, इवन दीनी मामलात में भी आ गई। दीनी मामलात में भी यही करती हैं, सामने रखती हैं, ऊद बत्तियां जलाती हैं, उन्होंने जैसा करती हैं वैसा करती हैं। अब वो क्या, बुत तो नहीं रखी होता सामने, बाकी का सब भी है, खाने पीने की चीजें रखे, सब उनके जैसा रखी। अब ये निकालना बोले तो हमें लोग जो दीन जानती, उन्होंने निकलना, उनके, आगे आना हाँ, थोड़े आयत जो है ना, शिर्क के ऊपर बहुत आयत है। हम्म, अल्लाह को ही पुकारो, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो, मुजीबुद्दावत दाई इज़ादान फलियस्तजीबुली, ऐसे ही बहुत सारी आयतें हैं। उस पर जोर देकर कुरान क्या ही आयतों को कोट कर कर उन्हें बताना चाहिए कि कुरानी आयत ये ही अल्लाह ने नाजिल किया है, ये पैगाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ये आखिर तक है, हमारे ऊपर भी आई है, तुम्हें भी सीखना है, तुम्हें भी दूसरों को सिखाना है। ये सभी अगर कोशिश करे भी तो अब अल्लाह हिदायत देने वाला, हमारे पास, हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है, कोशिश करने की जिम्मेदारी है। हिदायत अल्लाह जिसे चाहता है उसे ही देता है, हमारे ऊपर से वबाल टल जाता है कि हमारी कोशिश हमें जानते हुए नहीं बोले, ये नहीं रहना, बोल दिए, जाकर इशाअत कर दिए, हमारे हतल इम्कान हतल मकदूर जो हो सकता है वो कर दिए, तो हमारे ऊपर से वबाल टल जाता है। हम जवाब देने के काबिल रहते हैं। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम का जो सवाल होता है हमारे ऊपर रोज़े महशर, उसका जवाब देने के वास्ते ये जरूरी है कि हम ये काम करें। अब इस आयत का मंशा समझने के वास्ते पिछली आयत हमें पढ़ी ना, इसी सूरत की पिछली आयत 98 में, 98 में जो पढ़ी, वहां क्या पढ़े थे, मैं उसका ये बोल रही हूँ तर्जुमा।
बदवी अरब कुफ्र व निफाक में ज्यादा सख्त है। बदवी अरब ये अतराफ के ट्राइबल्स जो है उन्हों कुफ्र में और निफाक में बहुत ज्यादा सख्त हैं, बहुत डीप चले गए उन्हों। और इनके मामले में इस अमर के इम्कानात ज्यादा हैं कि इस दीन की हुदूद से ना वाकिफ रहें जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल किया है। अगर तुम्हें बोले नहीं, उन तक ये तालीमात नहीं गई तो बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि उन्होंने बेबहरा ही रह जाती, उनको मालूम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने यहाँ मेन स्ट्रीप में नहीं है, यहाँ आते भी नहीं। तो ऐसा करो कि एक जरे आदमियों को ले लो वहां से, उनको सिखाओ, उन्हों जाको अपने कौम में सिखाना, वरना ये लोग कुफ्र में निफाक में बहुत सख्त हैं, बहुत ही जड़ पकड़ गई है उनके अंदर। वहां सिर्फ अब ये आयत में सिर्फ इतनी बात बयान करने पर इक्तफा किया गया था कि दारुल इस्लाम की देहाती आबादी का बेशतर हिस्सा मेजॉरिटी मर्ज निफाक में इस वजह से मुब्तला है कि ये सारे के सारे लोग जहालत में पड़े हुए हैं। आजकल हमारा भी यही हालत, जहालत है। जहालत बोले तो ला इल्म है, जहालत बोले तो उन्हें नहीं, सितम जुल्म करने वाला नहीं है। जहल बोले तो ला इल्म है, इग्नोरेंस, जहालत में पड़े हुए हैं। इल्म के मरकज से वाबस्ता ना होने और अहले इल्म की सोहबत मयसर ना आने की वजह से, हाँ, इल्म के मरकज में नहीं है, इन्हों करीब नहीं है, मदीना नबवी के करीब नहीं, मस्जिद नबवी के, और दूसरा क्या, अहले इल्म की सोहबत नहीं है इनको। यही मामला है यहाँ भी, हमारे पास भी। तो ये यही सूरत और यही हल हमारे वास्ते भी इट अप्लाइज। अल्लाह के दीन के हुदूद उनको मालूम नहीं है, इस वजह से कि ये दो रीजन से, अहले इल्म की सोहबत नहीं है और एक तो उन्होंने मेन स्ट्रीम से बाहर है, मस्जिद नबवी से दूर है, इनको मालूम नहीं होता, मालूमात नहीं है इनको। अब ये फरमाया जा रहा है कि देहाती आबादियों को इस हालत में पड़ा रहने दिया जाए, देहाती आबादियों को इस हालत में पड़ा ना रहने दिया जाए, बल्कि उनकी जमात को, उनकी ये जहालत को दूर करने और उनके अंदर शऊर इस्लाम, इस्लाम का शऊर पैदा करने का अब बाकायदा इंतजाम होना चाहिए। अल्लाह कह रहा है अब सब जहाद में निकलने की जरूरत नहीं है, अब ये काम करो, इस काम की जरूरत है। इस गर्ज के लिए ये कुछ जरूरी नहीं कि तमाम देहाती अरब अपने अपने घरों से निकल निकल कर मदीने आ जाएं, तमाम के तमाम आ जाए तो मदीने में वो सहूलत नहीं कर सकते, ये जरूरी नहीं है। बल्कि और यहाँ इल्म हासिल करें, ये जरूरी नहीं है। इसके बजाय होना ये चाहिए कि हर देहाती इलाके और हर बस्ती और हर कबीले से चंद आदमी निकलकर इल्म के मरकजों को, मसलन मदीने और मक्का और ऐसे ही दूसरे मकामात में। अब यहाँ देखिए, ये बहुत गौर करने की बात है, अल्लाह कैसा वजह करता है। देखिए, मरकज के वास्ते क्या बयान करे, एक तो मदीना बोलिया, मस्जिद नबवी हो गया, मक्का बोलिया, बैतुल्लाह हो गया, और ऐसे ही दूसरे मकामात भी बोल रहा है जिसमें सारी दुनिया के मकामात आ जाती। हाँ, अब सारी दुनिया के मकामात, अब बेंगलुरु ले लीजिए, बेंगलुरु में कई मकामात हैं जहाँ दीन का इल्म चल रहा है, नहीं क्या? अब अतराफ की वो कबाइल ले लीजिए, इसी कॉन्टेक्स्ट में ले लीजिए, नहीं चल रहा है ना। बहुत से देहातियों में, देहातों में कहाँ चल रहा है, बहुत से देहातियों को नहीं मालूम है। सिर्फ उनकी रोजी रोटी, सुबह उठना, सुबह से शाम तक मेहनत करना, उसके बाद आना खाना। मैं कई लोगों को कोशिश करी हमारे करीब के देहात में, हमारा ही नेटिव प्लेस में, तो उन्होंने क्या बोलते मालूम, सुबह से शाम तक हमारी मेहनत होती है, अब शाम में हमें आती, शाम में कुछ पकाती खाती सो जाती, फिर सुबह उठती, फिर मेहनत पर चले जाती। हम कैसा पढ़े हैं, कहाँ टाइम है। अब इसका हल क्या है, क्या है इसका हल? मैंने ये हल निकाला कि एक दिन, थोड़ा 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 हम्म, थोड़ा 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 नहीं, करीब थोड़ा करीब उनके थोड़ा नहीं, करीब जाना है, थोड़े थोड़े करीब नहीं, जाना है कुछ। एक दिन हाँ, की उनकी मजदूरी दे दी जाए, एक दिन की अच्छा उनकी अच्छा, मजदूरी दे बिल्कुल। दी जाए, हाँ, और एक दिन उनको पढ़ाया जाए। अब पढ़ाया उनकी रहबत हो गई तो क्या करती उन्होंने, बाद में उन्हों को टाइम निकाल लेती, थोड़ा थोड़ा, एक 10 मिनट 15 मिनट उन्हों खुद निकाल लेती। ये एक दिन की मजदूरी दे देखो, एक दिन उनको काम से, एक दिन उन्होंने काम नहीं करे तो उनकी मजदूरी नहीं मिलती ना, नहीं नहीं मिलती, मिलती उनका ना, घर नहीं वो तो चलता, पेट उनकी नहीं भरता मजबूरी उनका। हमें समझना, समझना, एक दिन की ये दे समझना, देना। उसके दे देना वास्ते भी मजदूरी। तैयार नहीं हुए उन्होंने, उसके वास्ते हम्म क्या बोलने लगे, हमें लाखों का कर्ज ले लिए हमारे मालिकान से, उसे हम्म कर्ज अदा करने के वास्ते हमें जाना ही जाना है, हमें नहीं गए तो आंखों घर को उन्होंने गालियां देती,
बड़े बड़े गालियां देती, आइल फाइल बकती, बड़े बड़े गालियां देती उन्होंने घर के करीब खड़ को, हमें एक दिन भी चुका नहीं सकते। अब क्या हल करना भाई, अब अल्लाह ही मेहरबान हो जाए। अब ये भी सोचे हम कि एक दिन की मजदूरी उनकी हम दे देकर उन्हें ऑफ ड्यूटी रख के उन्हें ये पढ़ाया जाए, उसके बाद उनको अब महीने में एक बार या महीने में 2 बार करे तो उसके बाद उनको आदत हो जाती है, थोड़ा थोड़ा टाइम उन्होंने कैसा भी कर को निकाल लेते हैं। जब दिन की रोकबत हो जाती है तो वेर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, कहीं ना कहीं कैसा भी निकाल लेते हैं उन्होंने, 5 मिनट नमाज के वास्ते निकाल लेते हैं। तो ये सोचे तो उन्होंने क्या बोले, नहीं नहीं, हमें ऐसा खर्च लेको ही, इतने मखरूज है खर्च में डूबे हुए हैं कि हम एक दिन नहीं गए तो उन को, वैसे आप लोग मजदूरी देती थी हमारा पेट भर जाता है, लेकिन उनका मालिकान का काम नहीं होता ना, एक दिन का काम उनका जो रुक जाता है, उन्होंने हमारे ऊपर घर के करीबा को खूब गालियां देने लगती हैं। हमें ऐसा नहीं कर सकते। अब इसका हल मुझे तो समझ में नहीं आया, अल्लाह ही मदद फरमाए। कोशिश हमने की लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। दूर जाकर भी करना चाहे, वो है 70 किलोमीटर है, जाकर करना चाहे हम लोग, नहीं हुआ। अल्लाह इसके कोई सबील बता दे, कोई रास्ता निकाल दे कि हमारे ऊपर से ये उबाल टल जाए। बहुत सारे हमारे ऊपर खरिये हैं बोले खरीब जैसे में, खरीब के खरियों बहुत में भी ये वहाँ बीड़ी वर्कर्स हैं, और वहाँ सिल्क सिल्क मर्चेंट, सिल्क बुनने वाले, कूली वाले। सलम कितनी परेशानी उठाकर इस्लाम को सरफरोश करे, फरागत दी है उसको, बुलंद सरबुलंदी दी है इस्लाम को, कितनी मुसीबतें उठाई। ताइफ का मामला ले लीजिए, वहां उसके बाद आने के वक्त क्या हुआ, मक्के में कितनी तकलीफें उठाई। ये सब हमें ऐसा ही सोचने के वास्ते, वाकया पढ़ने के वास्ते या सीरत नबी में पढ़ने के वास्ते पढ़ने को चले गए तो नहीं मालूम होता। इसे जरा गहराई में आराम से बैठ को रात के कोई तन्हाई में दिल पर हाथ रखकर सोचे तो मालूम होता है, और हमें खुद करने के वास्ते निकलने का अगर इरादा करे तो भी मालूम हो जाता है कि कितनी मुसीबत है। कैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसी अक्खड़ कौम में, वैसी जाहिल कौम में अगर किया तो क्या हम नहीं कर सकते क्या? सोचना है, ये सोचने की बात है, ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। मदीने और मक्के और ऐसे ही दूसरे मकामात में आए हैं लोग, मरकज को आए हैं, देहातों से, अतराफ के देहातों से, हर कबीले से, हर इलाके से एक एक आदमी, दो दो आदमी आए, सीखें और वो जाकर अपने कबाइल में सिखाएं, और यहाँ दीन की समझ बेदार करें, पैदा करें, अपने आप में पैदा करें, फिर अपनी अपनी बस्तियों में वापस जाएं और वहां अवामुन नास को सिखाए, उनके अंदर बेदारी फैलाए, कुफ्र निकालें, शिरक निकाले, ये जो कुफ्रिया ये हैं, ये सारा उनमें से निकालने का यही एक तरीका है, अल्लाह बता रहा है। ये एक निहायत अहम हिदायत थी जो तहरीक इस्लामी को मुस्तहकम करने के लिए ठीक मौके पर दी गई है। कब? उस वक्त जब इस्लाम फैल गया है, लेकिन बदुओं में नहीं है, बदुओं में अभी भी वो कुफ्र शिरकिया रवैया ही जारी है इनमें, तो वो निकालने के वास्ते ये एक राइट टाइम पर दिया है अल्लाह ने। इब्तिदा में जबकि इस्लाम अरब में बिल्कुल नया नया था और इंतहाई शदीद मुखालिफत के माहौल में आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था, इस हिदायत की कोई जरूरत ना थी। कब? डर डर को फैलाते थे, डर डर को काम करते थे, नमाज पढ़ना तो सोचते थे, वही से वक्त ऐसा काम नहीं कर सकते थे। बदुआ से ला को यहाँ मरकज में रख को, खला पिला को, उनको तालीम दे को, ये काम नहीं कर सकते थे, तब नहीं कर सकते थे, दैट वाज नॉट द टाइम। अब है, अब पूरा डंका बज गया है, अब हिजाज में सरबुलंदी, सरफराजी हासिल हो गई है, अब मुसलमानों का जोर है, इस्लाम का गलबा है, अब करो भाई, अब कर सकते हो। कोई जरूरत तब नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तो इस्लाम कबूल करता ही वो शख्स था जो पूरी तरह उसे समझ लेता था और हर पहलू से उसको जांच परख कर मुतमईन हो जाता था। मगर ये जब तहरीक कामयाबी के मरहलों में दाखिल हुई और जमीन में उसका इख्तिदार कायम हो गया, तो आबादियों की आबादियां फौज दर फौज आ रही ना इस्लाम में। ज्यादा से ज्यादा। फौज दर फौज इसमें शामिल होने लगी, जिसके अंदर कम लोग ऐसे थे जो इस्लाम को उसके इसके साथ तमाम तालीमात के साथ समझ बूझ कर इस पर ईमान लाते थे, ऐसे कम थे। वरना बेशतर लोग महज वक्त के सैलाब में गैर शऊरी तौर पर बहे चले आ रहे थे। सब ले ली ईमान, हमें भी लेकर आना है, ऐसा आ जाते थे, मालूम करते नहीं थे, शऊर नहीं था।
नौ मुस्लिम आबादी का ये तेज रफ्तार फैलाव बज़ाहिर तो इस्लाम के लिए सबब क़ुव्वत था, क्योंकि पैरवान इस्लाम की तादाद बढ़ रही थी, लेकिन फिल हकीकत इस्लामी निज़ाम के लिए ऐसी आबादी किसी काम की नहीं थी, है कि नहीं? है। ऐसे लोग जो नहीं जानते लेकिन मुसलमान हैं, नहीं नाम के जानते। वास्ते मुसलमान नहीं, इस्लाम लिखते हैं, सुन्नी लिखते हैं, ये सब क्या खानापुरी के वास्ते, फिल इन द फॉर्म के वास्ते। ऐसी क्या जरूरत है भाई इस्लाम को क्या जरूरत है? समझ बूझ रखना, दूसरों को समझा सकना, इस्लाम क्या है जानना, अब ऐसी जरूरत है, यहाँ अल्लाह कह रहा है। बल्कि उल्टा नुकसानदेह थी, ऐसी जो आबादी थी वो नुकसानदेह थी, जो शऊर इस्लामी से खाली हो और इस निज़ाम के अखलाकी मुतालिबात पूरे करने के लिए तैयार ना हो, वैसी ही क्या भी फायदा नहीं है। तो उसके वास्ते ऐसा माहौल पैदा करो कि कोई मरकज को आकर हासिल करे और वहां जाकर उसकी तालीमात की इशाअत करे। एक बार फिर देख लेंगे क्या है ये। वमा कानल मोमिनीना लियनफिरू, जरूरी नहीं है कि हर मोमिन के लिए वो निकले। काफा, काफा बोले तो पूरे के पूरे, फिस्सिल्मी काफा, उदखलू फिस्सिल्मी काफा, क्या है हमारे वास्ते? उदखलू फिस्सिल्मी काफा, दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे। हाँ, काफा समझाने के वास्ते बोल रही हूँ, पूरे के पूरे, टोटल पैकेज ये। अब इसमें मैं ले तू रोजा रखना मुश्किल है, ज़कात देना मुश्किल है, नमाज पढ़ ले तू, दूसरे काम कर ले तू, नहीं, फिस्सिल्मी काफा, पूरे के पूरे, ये पैकेज है पूरा, टेक इट और लीव इट, पूरा का पूरा। थोड़ा मैं करता हूँ, थोड़ा नहीं करता, कस्टमाइज्ड इस्लाम नो, नॉट परमिसिबल, या वो ये नहीं है, ये इसका ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ कहा जा रहा है वमा कानल मोमिनून लियनफिरू काफा, नहीं है लोगों के लिए मगर के मुश्किल है कि सबके सब निकले, सबके सब निकलने की जरूरत नहीं है। फलौला नफरा, क्यों नहीं ऐसा होता कि मिन कुल्ली फिरकतिन, सब में से, मिनहुम तुम में से, ताइफतुन लियतफक्कहू, थोड़ा कोई जमात इस मोहल्ले से, इस कबीले से, इस जगह से, एक एक के दो दो निकले, सब टीम बनाकर आए, फिर दीनी दीन में, वलियुनज़िरू, ताकि डराए, कौमहुम, एक कौम उनकी कौम, इज़ा रजऊ, वो वापस जाकर, इलैहिम उनकी तरफ, पहले तो हासिल कर ले यहाँ कर तालीम, उसके बाद जाकर ये जो तकवा पैदा करना है वो, और तालीमात देकर उनको उनमें तकवा पैदा करें, इल्मियत पैदा करें उनमें, लअल्लहुम यहज़रून, लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो बचे रहे। यहज़रून बोले तो डरना, लेकिन बचना, यहाँ सेंस बचना। अब क्या नहीं हासिल करे तो क्या है? जहन्नम है। जहन्नम से किसे बचने के वास्ते क्या है? तालीम हासिल करना। मुश्किल है इनको पूरे के पूरे को हासिल करना, तो ऐसा निजाम अल्लाह बता रहा है कि एक 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 दो 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 एक एक इलाके से आओ, रहो, एक साल रहो, यहाँ तालीम हासिल करो, उसके बाद अपने खरियों में जाकर, अपनी जगह जाकर इसको आम कर दो। ये थी आयत, कौन सी आयत नंबर गुजरी? 122। हाँ,